अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। दोस्तों आज की वीडियो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अमेरिका ने चाइना का एक बैलून मार गिराया था तो उसके बाद जो चाइना का रद्द-ए-अमल आया था अमेरिका के खिलाफ, उस हवाले से इस वीडियो के दो की पॉइंट्स हैं। नंबर 1 के जो बैलून मार गिराया था क्या वो मिल गया, क्या उसमें कोई डिवाइस मिली जिससे अमेरिका अपनी बातों का पूरी तरह से दिफा कर सके, या फिर चाइना सच बोल रहा है। नंबर 2 कि चाइना अगर ये कह रहा है कि वो स्पाई बैलून था, वो सिर्फ एक पब्लिक एयरशिप था, तो चाइना के पास अपने सैटेलाइट्स हैं, इसके बावजूद चाइना एक स्पाई बैलून इस्तेमाल क्यों करेगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। जब अमेरिकी हदूद के अंदर एक बैलून देखा गया तो यूएस मिलिट्री ने फौरन सदर जो बाइडेन को फोन किया और उनसे इजाजत मांगी कि अब इस बैलून का क्या किया जाए, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया कि इसको मार गिराया जाए और सदर जो बाइडेन के कहने पर बैलून को यूएस मिलिट्री ने मार गिराया। ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं जो कि यूएस मिलिट्री ने शो की हैं। चाइना के तबाहशुदा बैलून की ये समंदर से मिली हैं और इन पिक्चर्स को शो किया है यूएस मिलिट्री ने। और ठीक उसी दिन सदर जो बाइडेन ने मीडिया टॉक की और कहा कि वो चाइना से इस हवाले से जरूर बात करना चाहेंगे कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, चाइना का कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अमेरिकी हदूद के अंदर क्या कर रहा है। आप ये जरा वीडियो देखिए। To discuss it with his counterpart in China. I expect to be speaking with President Xi, and I hope we're going to get to the bottom of this. But I make no apologies for taking down that balloon. Biden did not say when he would speak with Xi, but said the U.S. was continuing to engage diplomatically with China on the issue. China has claimed the balloon that was shot down off the coast of South Carolina on February 4th was for monitoring weather conditions. Biden said it was for surveillance and that it was large. The military advised against shooting it down over land because of the sheer size of it. It was the size of multiple school buses and posed a risk to people on the ground. And because we knew its path, we were able to protect sensitive sites against collection. We waited until it was safely over water, which would not only protect civilians, but also enable us to recover substantial components. As for the other three unidentified objects, Biden said they likely didn't come from China. We don't yet know exactly what these three objects were, but nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from any other country. The intelligence community's current assessment is that these three objects were most likely balloons tied to private companies, recreation or research institutions studying weather or conducting other scientific research. Biden's remarks came amid reports that the Chinese balloon originally had a trajectory that would have taken it over Guam and Hawaii, but was blown off course by prevailing winds. Earlier on Thursday, China's foreign ministry said its flight into U.S. airspace was an isolated incident and that the U.S. should be willing to meet China in the middle, manage differences, and promote the return of U.S.-China relations to a healthy and stable track. अब इस मीडिया टॉक के फौरन बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन को ये कहा कि वो अपने हम मनसब चाइना के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनसे बात करे, फौरन मीटिंग करे। तो फौरन मीटिंग अरेंज भी कर ली गई और ये मीटिंग अरेंज की गई मोनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद। अब इस साल 2023 में अमेरिकी हदूद में ये पहला ऑब्जेक्ट है जिसको अमेरिका ने गिराया है और इसके बाद ये दो सुपर पावर्स के दरमियान पहली मीटिंग है। अब जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन को जाना था एक स्केड्यूल दौरे के ऊपर बीजिंग, उन्होंने ये दौरा फौरन कैंसिल किया और फौरन ही एक मीटिंग अरेंज की गई चाइना के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से और ये मीटिंग तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रही। अब मिस्टर ब्लिंकन ने जो मेजर चीजें कही हैं, आप ये वीडियो देखें जरा। China sent a surveillance balloon over our territory, violating our sovereignty, violating international law, and I told him quite simply that that was unacceptable and can never happen again. That China is considering providing lethal support to Russia in its aggression against Ukraine, and I made clear that that would have serious consequences. अब मिस्टर ब्लिंकन ने ये साफ-साफ कहा कि चाइना खुला खिलाफवर्जी कर रहा है हदूद की और वो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने अपने हममनसब से ये भी कहा कि ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। और इसके जवाब में चाइना के जो हममनसब वांग जी, उन्होंने फौरन कहा कि अमेरिका
अपने 10 बैलून्स चाइना की तरफ भेज चुका है पिछले 30 सालों में, और अगर हमारा एक बैलून अमेरिकी हदूद में आ जाता है तो इसमें क्या बड़ी बात है। अब इस 1 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली मीटिंग में अमेरिका ने चाइना को एक और बात से खबरदार किया कि चाइना हरगिज भी रशिया की हेल्प नहीं करेगा रशिया यूक्रेन जंग में। हालांकि जब से ये जंग शुरू हुई है तो चाइना के ऊपर मुसलसल इल्जामात लग रहे हैं कि वो रशिया की हेल्प कर रहा है, उनको हथियार फराहम कर रहा है, और इस काविश में ईरान और चाइना का पूरा हाथ है। आप मिस्टर ब्लिंकन के ये अल्फाज सुने जरा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मीटिंग अरेंज की गई थी बैलून के हवाले से जो अमेरिका ने मार गिराया था, जबकि इस मीटिंग में तमाम तर सबसे ज्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ रशिया और यूक्रेन की जंग के ऊपर था। अब शायद कि हो सकता है कि अमेरिका को कोई बहाना चाहिए था चाइना से खुलम खुला बात करने का, तो इसलिए उन्होंने बैलून को मार गिराया और मीटिंग का बहाना बना लिया। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि चाइना ने सैटेलाइट के होते हुए एक बैलून को क्यों इस्तेमाल करेगा निगरानी के लिए। हालांकि ये चाइना के ही अल्फाज हैं कि वो निगरानी के लिए बैलून को उन्होंने भेजा हुआ है। वो एक सिविलियन एयरशिप है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बैलून्स हैं ये काफी पुराने वक्तों में इस्तेमाल होते थे बॉम्ब्स गिराने के लिए, जब फाइटर जेट्स नहीं हुआ करते थे, और इन बैलून्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ था वर्ल्ड वॉर में। जब जापानीज अमेरिका के ऊपर हमला कर रहे थे तो वो इन्हीं बैलून्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अब बिल्कुल ये मुमकिन है कि चाइना शायद इसलिए इस्तेमाल कर रहा है बैलून्स को कि वो अमेरिकी हदूद की टेक्निकल कैपेबिलिटीज को जान सके। तो इस सिलसिले में चाइना एक बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था कि अगर वो कोई और चीज भेजता है, कोई जेट भेजता है, तो उसको अगर मार गिराया जाए तो ये खुला वर्जी होगी। हालांकि चाइना के पास अब इस वक्त ये बहाना है कि ये एक सिविलियन एयरशिप है जो कि अपने रूट पे था, वो गलती से भटक गया और अमेरिकी हदूद में आ गया। तो अगर चाइना ये काम किसी और चीज से करता तो एक बड़ा मामला खड़ा हो जाता, बड़ा मसला हो जाता। जबकि देखा जाए तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन बैलून्स में टेक्निकल डिवाइसेस जैसा कि कैमरास, सेंसर्स आसानी से फिट किए जा सकते हैं जो कि हदूद का और रडार का आसानी से जायजा ले सकते हैं। तो अगर इस बैलून को खत्म कर दिया जाए जैसा कि रिसेंटली अमेरिका ने खत्म किया, तो जब मिसाइल बैलून से हिट करती है तो तमाम डिवाइसेस खत्म हो जाती हैं और जासूसी का तमाम तर सुराग खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करें और आसास टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।